Hello everyone, welcome to MBA Guru. MHCT 2023 retest is scheduled on 30th of April. Earlier it was on 27th. They have shifted by 3 days. Still it is not confirmed because I think that it might get further postponed seeing the conditions that are happening right now. Okay, some students are still in the dilemma that if they will get the retest option or not, क्योंकि सब लोगों को ढंग से पॉपअप नहीं आ रहा है, कुछ अभी भी ग्लिचेस चल रहे हैं. Like in case you have got the chance, even if you have not got the chance, start your preparation तो जारी रखनी है क्योंकि वो चीज अगर टच छूट जाता है, सो दैट मोमेंटम ब्रेक्स, राइट. सो ठीक है, जो भी वो होगा कि कब होगा और लोगों का नाम आ रहा है नहीं आ रहा है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. कीप योर प्रिपरेशन लेवल. Okay, and you have 15 days, assuming that it happens on 30th of April, so you have 15 more days to prepare for the examination. So in this video I'm going to tell you what you should do in the next 15 days so that you can maximize your score in the examination. If you are new to my channel, please do subscribe to my channel and also join my Telegram group for MBA preparation. Now you have 15 days. 15 days, you cannot change everything, right? Like you cannot have just a drastic change, but it is just that you can boost your score. Let us say आप पहले अटेम्प्ट में 120 कहीं पहुंच रहे थे, so you might be able to reach 150. Okay, 130, 140, 150, मतलब स्कोर अप कर सकते हो. Now what how to use these 15 days is you have to revise things, right? New things you won't be able to cover much. So how to utilize these things is, first is extensive revision. 15 डेज तक आपको रिवीजन में ही टाइम स्पेंड करना है, जितना ज़्यादा रिवाइज कर सको, राइट. रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट जो आपने प्रीवियस मॉक टेस्ट दिए हैं या जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है. सो रिवाइज दोज कॉन्सेप्ट्स. आई वुड से कि अगर किसी के मॉक बच गए थे, आपने पहले मॉक परचेज किए थे, मान लो 30 मॉक्स थे, उसमें से 5-6 बच गए, जितने भी बचे ट्राई टू टेक 5 to 10 मॉक्स. इफ यू डू नॉट हैव, डोंट वरी, लाइक ऐसा कंपल्शन नहीं है. बट अगर आपके पास मॉक्स बचे हैं, सो यू कैन यूज देम नाउ. ओके, यू गॉट अ सेकेंड चांस. तो कई बार ऐसा होता है कि sorry, आपने मॉक्स खरीद ली और आप दे नहीं पाए थे पहले, ठीक है, तो अभी टाइम है, आप इन मॉक्स को कवर कर सकते हैं. Very important thing is that work on your vocabulary. Okay, if you look at the papers which were held, जो 4 slots अभी हुए थे, इसमें बहुत सारे questions vocab के आए थे. When I say vocab, I mean that there were a lot of questions on synonyms and antonyms. Okay, so ensure that you are well versed with these question types, right? Synonym, antonyms के काफी questions पूछे गए थे. And a good way to prepare for this is you have this Barron's list. Okay. So there is something called Barron's list. You can Google it and you will get the list of words. उसके words देख लो, वो most commonly used words होते हैं, ठीक है. Some of the words you will already be acquainted with. Some words you can go through and build your vocabulary in these days, because there were a good number of questions on this. Let's say 15 to 20 questions सिर्फ vocabulary से आ रहे थे, ठीक है. And if you talk about these things, it hardly takes a time, right? तो 15 questions आप 5 मिनट में कर सकते हो, तो 5 मिनट में आपके 15 मार्क्स बन सकते हैं विदाउट मच ऑफ अ प्रॉब्लम. ओके, 5 मिनट भी ज़्यादा है, मतलब बहुत जल्दी हो जाते हैं synonym antonym. And the thing is, in those questions you know or you do not know. If you do not know the words, आप आधा घंटा लगाओ नहीं होंगे, ठीक है. आते हैं 5 मिनट में 15 मार्क्स. सो दिस इज अ गोल्डन थिंग दैट इफ यू गेट इन द एग्जामिनेशन. This time we saw that there were lesser questions on grammar. Vocabulary पे बहुत आए थे, synonyms बहुत सारे पूछे थे. So cover this thing well so that like you have the chance to score well in VA. पास्ट ईयर कैट पेपर्स फॉर डीआई एज इट इज, उन्हें डीआई के क्वेश्चंस उठा के रख दिए थे. और आप बाकी क्वेश्चन, बाकी पेपर्स भी आप देख सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल अप टू 2008 यू विल गेट द पेपर्स, एंड फ्रॉम 2017 टू 22 आपको पेपर्स मिल जाएंगे ऑनलाइन. इसमें ग्राफ बेस्ड डीआई, लॉजिकल डीआई सेट वैसे मत करना, ठीक है. जो ग्राफ बेस्ड होते हैं कि बार ग्राफ दिया ये निकालो, ठीक है, और like pie chart diya and all those. So try those questions because you might get a set based on it. Okay, in one of the slots
देयर वाज डायरेक्ट सेट फ्रॉम कैट 2020. ओके, सो अगर किसी ने वो पहले किया होता तो वो डायरेक्ट सीधे करके आ जाता, उसे टाइम नहीं लगता सॉल्व करने में. ओके, वन थिंग इज दिस पास्ट पेपर्स. Another important thing to cover is games and tournaments. Okay, this year they had asked in one of the slots two sets on games and tournaments. For 2022, maybe I remember there was a set on games and tournaments. Okay, so I have already created two videos on games and tournaments. उसमें आपको दो कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे, एक नॉकआउट वाला, एक राउंड रॉबिन वाला. सो आई हैव कवर्ड द सेट्स दैट वाज आस्क्ड इन दिस ईयर्स एग्जामिनेशन आल्सो. सो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है. ओके, then you should practice abstract reasoning from various sources. Abstract reasoning इस बार जैसे सीरीज एंड ऑल भी आ रही थी, ऑड वन आउट काफी आया था. ठीक है, सो हाउ टू सर्च फॉर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इज, आप क्या करते हो, आप नेट में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सर्च मारते हो. ठीक है, तो कुछ ही कंटेंट मिलता है. इंस्टेड ऑफ दैट सर्च नॉन वर्बल रीजनिंग. और आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए, ठीक है, लेट अस से आपको ऑड वन आउट चाहिए, तो ऐसे सर्च करो ऑड वन आउट नॉन वर्बल रीजनिंग. ठीक है, गूगल में ऐसे सर्च करोगे तो आपको कुछ साइट्स मिल जाएंगी, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो. आपको सीरीज बेस्ड करना है, सीरीज बेस्ड नॉन वर्बल रीजनिंग, राइट. एनालॉजी बेस्ड नॉन वर्बल रीजनिंग. तो जिस तरह का आपको क्वेश्चन चाहिए उस तरह के क्वेश्चन आपको नॉन वर्बल रीजनिंग डालने पे मिल जाएंगे, क्योंकि most of the places it is called non-verbal reasoning, right? Only in CET they call it abstract reasoning. बाकी सारे एग्जाम में से नॉन वर्बल रीजनिंग या विजुअल रीजनिंग भी कहा जाता है, कुछ जगह पे विजुअल रीजनिंग भी इसे बोलते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सर्च फॉर दिस एंड प्रैक्टिस थ्रू मल्टीपल सोर्सेस. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवाइज फॉर्मूले इन मैथमेटिक्स. देखो, पहले से क्वांट का जो स्ट्रक्चर होता था, क्वांट में आता था डीआई. ओके, देन यू हैड नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो क्वांटिटी कंपैरिजन, क्वांटिटी वन, क्वांटिटी टू. ठीक है, दिस टाइम अराउंड दीज क्वेश्चंस यूज्ड टू कंस्टिट्यूट अराउंड 20 क्वेश्चंस इन क्वांट. ठीक है, अब इस बार क्या हुआ है, इस बार के जितने पेपर हुए उनमें ये आया ही नहीं है, बहुत कम, लाइक नंबर सीरीज के एक दो क्वेश्चन, सो हार्डली यू आर गेटिंग 5 क्वेश्चंस ऑन दिस. ओके, सो एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग इज द वर्ड प्रॉब्लम्स, जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती थी वो अब बहुत बढ़ गई है. सो क्वांट विल बी फुल ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स. अर्लियर ये सब क्वेश्चन आते थे, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो 15-20 क्वेश्चन उन्हीं से हो जाते थे. ठीक है, अब ये क्वेश्चंस काफी कम हो गए. सो दैट मींस वर्ड प्रॉब्लम्स हैव गॉन अप. एंड वर्ड प्रॉब्लम्स किस में आती है, बेसिकली अरिथमेटिक में ही आती है. ठीक है, यू विल नॉट गेट अलजेब्रा और मोस्टली अरिथमेटिक, सम पीएनसी. ओके, सो रिवाइज थिंग्स लाइक टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे. ठीक है, प्रॉफिट लॉस, ओके, देन एस आई सी आई. टाइम स्पीड डिस्टेंस तो अलग अलग वेराइटीज आएंगी, लाइक टाइम स्पीड डिस्टेंस में यू शुड नो व्हाट इज बोट एंड स्ट्रीम, राइट. यू विल गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रेन्स, यू विल गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेसेस. तो हर तरह की वैरायटी जो आपने अगर देखी है ना, तो उन फॉर्मूलों को रिवाइज कर लो, सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट कि अच्छा रेस में क्या होता था, ट्रेन में क्या होता था, बोट स्ट्रीम में क्या होता है, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, व्हाट आर दोस टर्म्स. ओके, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जितने भी टॉपिक्स हैं एटसेट्रा, कवर दीज टॉपिक्स वेल, बिकॉज यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट क्वेश्चंस फ्रॉम देम. ओके, so I hope you found this thing valuable. I have created a couple of videos on games and tournaments. I will also be doing memory based paper. ठीक है, for both QA as well as LR. Okay, so do watch that also. That will give you an idea जो मैं कह रहा था quant में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं. So you will get to know. Okay, these are the kind of questions that are being asked. So we will discuss those questions during the sessions, and you will get an idea कि किस तरह के questions हैं, क्या concepts हैं जो हमें revise करने हैं. So in case you are appearing for the retest and wish to have a structured course for preparation, okay, I had a course for MHCT and CMAT as well. So
Earlier it was live classes, now they are available in recorded format. Okay, so if you wish to enroll in this, ये आपको पूरे टॉपिक आपको अलग अलग जगह ढूंढने नहीं पड़ेंगे, एक जगह पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे फॉर ऑल सेक्शंस, चाहे वो एलआर की पजल्स हो, अरिथमेटिक के प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, या फिर इंग्लिश के जितने टॉपिक्स हैं, ग्रामर, आरसीज एटसेट्रा एटसेट्रा, सबका यहाँ पे आपको सारी चीज़ों का सोर्स मिल जाएगा, राइट? सो यू कैन check the link given in the description, and if you wish to purchase that, you can get at a discounted price. So I hope you are now well set for the examination, the ones who have got the second chance. So make the best use out of this chance. Okay, बहुत मतलब ये rare scene है. Otherwise, it does not happen that they take retest. So if you have got these extra days, utilize these extra days well. I hope आप पहले से तैयारी कर रहे हो कि 15 days और है, अच्छे से preparation में लगे रहो, so that you can maximize your performance in the examination. So wish you all the best for the examination, and keep watching my channel for content for exam preparation.